تو دوستو یہ ایک میں ریڈنگ کرنے لگا ہوں ایسے دوستوں کے لیے جن کو 1 سال تک سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے، اور یہ میرے ٹک ٹاک اور خاص کر یوٹیوب اکاؤنٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ مکمل طور پہ ہیل ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ریڈنگ کی جائے۔ ایس آف سورڈز، اسٹرینتھ زبردست، 4 آف سورڈز، فول، دا ہیروفینٹ، دا ورلڈ۔ دوستو آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی ریڈنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی انرجیز ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ چلیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ اس پوری جرنی کو مکمل کرنے کے بعد لوگ آپ کو کیسا دیکھ رہے ہیں، آپ کے بارے میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، اور فردر آپ یہ جو کارڈز ہیں، ٹیرو ریڈنگ ہے، یہ اب آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ کر سکتے ہو۔ جس قدر خوبصورت انٹیوشن پاور آپ کو اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں، جو کچھ آپ سہ کر سمجھ کر آئے ہو، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ آپ کی ٹرانسفارمیشن کی بات کرتا ہے۔ اور دوستو یہ پہلا ہی کارڈ آپ کے گروتھ کی بات کر رہا ہے کہ آپ کتنا گروتھ کر چکے ہیں، آپ کی لائف کیسے چل رہی ہے اس ٹائم پر، کیا کچھ آپ اچیو کر چکے ہو۔ تو دوستو یہ ریڈنگ فالوئنگ کے لیے ہے جو کم از کم 1 سال سے اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، مکمل ہیل ہو چکے ہیں، اور آپ کی لائف میں ایک نیو پرسن آ چکا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے انتظار میں نہیں ہے، آپ ایک مکمل اور بہترین لائف گزار رہے ہیں۔ آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے ہو۔ یہاں ان کارڈ کے ذریعے آپ کی ترقی دیکھ کر قرآن کریم کی ایک آیت یاد آئی کہ اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ دوستو پاسٹ کو میں ٹچ تو خیر نہیں دوں گا، کیونکہ جو آپ نے سہا ہے وہ میرے تجربے میں ہے، یعنی آپ کا سہنا اور میرا علم ایک برابر ہے۔ آپ لوگوں کی انرجیز میں ریڈ کر چکا ہوں، آپ لوگوں کی پرسنل ریڈنگ میں کر چکا ہوں۔ تو دوستو آج آپ دوست جہاں پہنچے ہو، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مدد ہے، اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ اس ٹائم کو یاد کریں جب آپ پیسز میں بکھرے ہوئے تھے، سٹریس تھا، انزائٹی تھی، ڈپریشن تھا، اکیلا پن تھا، خاموشی کا یہ عالم تھا کہ ہلکی سی سرسراہٹ بھی ایسے لگتی تھی جیسے سماعتوں پہ سنگ باری ہو رہی ہو۔ زندگی ایسے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی جہاں اپنا سایہ بھی میسر نہ تھا۔ ڈیوائن نے ایسی مار ماری تھی کہ 14 کی جگہ 14 لاکھ طبق ایک ساتھ روشن کر دیے تھے۔ اس قدر زبردست آزمائشوں سے آپ گزارے جاؤ گے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ایک امید تھی، وہ اللہ پاک جس نے عدم سے وجود بخشا ہے وہ تو ہے نا۔ اور روح اس قدر زخمی تھی کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیا یہ بھی ریپیئر ہو سکتی ہے۔ حالانکہ روح کیا ہے؟ روح امر ہے میرے رب کریم کی، جو عدم سے وجود بخش سکتا ہے، تو کیا وہ میری روح کی مرمت نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں تھا کہ آپ لاچار تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، بہت کچھ کر سکنے کے بعد بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کیے رکھا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد نہ کرتا؟ یہاں سے ڈیوائن نے نہ صرف آپ کو ہیل کیا بلکہ آپ کے لیے متفرق دروازے بھی کھول دیے۔ بارہا
आपकी आजमाइशें चलती रही, मगर आपने सब्र किए रखा और अपने स्किल पर काम करते रहे, खुद पर काम करते रहे, अपने आप को ऐसा बनाया, संवारा और निखारा कि लोग हैरान हैं। और बिलाखिर वो वक्त आन पहुंचता है जब आपको कॉस्मिक एनर्जी पे उबूर हासिल हो जाता है और यूनिवर्स आपकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज करते जा रहे हैं। इसकी इब्तिदा होती है आपकी गुफ्तगू से। आपके अल्फाजों में वो तासीर रख दी जाती है जो दिल तक उतर जाए। नंबर 2, आपको फाइनेंस में फ्रीडम दे दी जाती है कि आप कभी भी किसी के मोहताज न रहें। 3, आपके ताल्लुकात को बहुत पावरफुल लोगों तक करवा दी जाती है। नंबर 4, आपके बिजनेस को दुआम बख्श दिया जाता है। 5, लाइफ में एक न्यू पर्सन ऐड कर दिया जाता है। 6, आप साहिब औलाद बना दिए जाते हो। 7, आपके दिल के वीरानी को मोहब्बत से आबाद कर दिया जाता है। 8, आपकी जिस्मानी सेहत को बहाल कर दिया जाता है। 9, आपके इल्म में इजाफा कर दिया जाता है। 10, मैजिक से लड़ना सिखा दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको ये बताने की मैंने कोशिश की है कि आपको अब किसी भी रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, ना पर्सनल रीडिंग की, ना जर्नल रीडिंग की। यहाँ मैं आप लोगों को आपकी शख्सियत आम लोगों की नज़र में दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ लोग कह रहे हैं कि आपकी गुफ्तगू पहले की निस्बत बहुत क्लियर हो गई है, ऐसा वर्ड्स आया हुआ है। आपकी बातचीत से काफ़ी सारे लोगों को इनके जवाबात मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के शेडोज़ को आप ट्रिगर कर रहे हो। कुछ लोग अपना डार्क साइड नहीं देखना चाहते हैं। ये इस कदर इस नेगेटिविटी के आदी हो चुके हैं कि और अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, मगर जब सामना आपसे हो या आपके कैरेक्टर से होता है तो ये ट्रिगर हो जाते हैं। जाकर लोग अपनी खामियां देख पा रहे हैं आपकी वजह से। आप इतना क्लियर बोल रहे हो कि आपको किसी भी बात की वजाहत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और आपकी गुफ्तगू अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उतार रहे हैं। बमाए आपके मुखालिफिन के, आप इनके तवाहिमात को, इल्यूजन्स को ब्रेक कर रहे हो, काट कर आपने रख दिए हैं। जैसे आप इनको इनकी असल शक्ल दिखा रहे हो और ये भी चाहे ट्रिगर होकर हो या मजबूर होकर हो अपनी इस्लाह करने लग गए हैं। आपकी कम्युनिकेशन को बहुत पसंद किया जा रहा है। पास्ट के कुछ एडिक्शन ज़्यादा लोगों को ये बात बहुत बुरी लग रही है, मगर दोस्तों ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि किसको क्या अच्छा लगता है या किसको क्या बुरा लगता है। आपका मतलब सिर्फ अपने आप से होना चाहिए है, अपने काम से होना चाहिए है, अपने वर्क से होना चाहिए है। जहाँ तक ऐसे लोगों की बात है कि ये ट्रिगर क्यों हो रहे हैं, तो देखें, एक तरफ सच को रखते हैं, एक तरफ मुनाफिकत को रखते हैं, एक तरफ रात को रख दें, एक तरफ सूरज को रख दें। जितना इन मुतज़ाद चीज़ों में फ़र्क है, उतना ही फ़र्क आपकी शख्सियत में और पास्ट के लोगों में है। तो दोस्तों, लोग कह रहे हैं यहाँ आपकी कम्युनिकेशन से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो खुद को कमज़ोर समझते हैं, इनको आपसे हिम्मत मिल रही है, वो अपनी लाइफ में चेंज को ला रहे हैं। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ स्वर्ड्स, इनको आपसे स्ट्रेंथ मिल रही है। ये आपको देखकर अपनी लाइफ की तरफ वापस आ रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। ये तासीर रखी है आपकी कम्युनिकेशन में दोस्तों अल्लाह ताला ने। दोस्तों सोचिएगा, पास्ट में कौन सुनता था आपको? तो आपकी कम्युनिकेशन लोगों को इनके अंदर एक लाइट दिखा रही है और इनको मोटिवेट कर रही है कि ये अपने आप को हील करें और ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएं। जो लोग लो वाइब्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, इनको जवाब आपसे मिलते हैं और आपको पता है किसको क्या जवाब देना है। स्ट्रेंथ के साथ बहुत ही अच्छा जवाब दे रहे हैं आप।
यहाँ लोग देख रहे हैं जो आपके साथ ईगो से चलते थे और आज आपको ईगो दिखाते हैं। आपने इनके ईगो पर अपने स्निकर रखे हुए हैं। इनकी जरूरत नहीं हो पा रही आपसे सामना करने की, लिहाजा इनके ईगो को खुद इनकी अपनी नज़र में ही आपने बेवकत बनाकर रख दी है। ये कमाल आपने कर दिया है और लोग आपके इस अमल से ज़बरदस्त मुतासिर हो रहे हैं। इस टाइम पर आपको एक ईगो ब्रेकर के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ ये ओरेकल कार्ड कहता है कि जो लोग खुद को चेंज करना चाहते हैं वो आपको अपने लिए एक टीचर की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन की तरह देख रहे हैं और सीख रहे हैं। आपसे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है ये जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार आपको मिल रहा है। ये आई लव यू वाले मैसेज तो आपको रोज़ ही मिल रहे होंगे दोस्तों। यहाँ आपको डिवाइन ने बिला गरज किसी से प्यार करना और करवाना दिखा और सिखा दिया है और लोग आपकी बेलौस मोहब्बत को देखकर भी आपसे मुतासिर हो रहे हैं। यहाँ सोचिएगा कि किसी एक मुनाफिक के बदले आपको कितनी मोहब्बत मिल रही है। जहाँ पास्ट में आपको चीट किया गया था, आज वो तमाम लोग आपसे क्यों मुतासिर हो रहे हैं और क्यों आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। आज वो कौन से सुरखाब के पर हैं जो आपको लग चुके हैं और इन लोगों को ये दिखाई दे रहे हैं। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है दोस्तों, जो लोगों को मजबूर कर रही है आपसे मोहब्बत करने को। और यहाँ से यूनिवर्स आपकी कन्विंसिंग पावर को मजीद बेहतर करने वाले हैं। यहाँ लोग आप में डिवाइन की एनर्जी को देख रहे हैं। लोग जब आपके एनर्जी फील्ड में आते हैं वो बहुत पुरसुकून फील करते हैं। यहाँ किसी फीमेल को भी आपसे डर नहीं लग रहा है। आपकी वाइब बहुत दिलकश लगती है इनको और बहुत खूबसूरत है। लोगों को जैसे आप एक मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचते हुए ला रहे हो और लोग खुद हैरान हैं कि वो ऐसा क्यों आपके लिए फील कर रहे हैं। वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनमें आप वो चाह पैदा कर देते हो जो मर चुकी होती है और इनको खुद से उम्मीद भी नहीं होती है कि मैं ये कर पाऊंगा। यहाँ वो टाइम याद कीजिएगा जहाँ खुद आपकी नज़र में आपकी और दुनिया की एंड हो चुकी थी। आज जो भी लोग आपके करीब आएंगे वो पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, मोटिवेट फील करेंगे। यहाँ वो वक्त याद कीजिएगा दोस्तों, आपकी मदद करने वाला कौन था, कौन सा हेल्पिंग हैंड आपको डिवाइन ने प्रोवाइड किया था। बहुत सारे आपके अपने मुगालते भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ लोग कह रहे हैं कि आप वो इंसान हो द फूल के कार्ड के साथ जिसने खुद अपनी डेस्टिनी लिख डाली है। ज़ीरो से स्टार्ट लेकर आप चलते रहे हैं और पीछे मुड़कर भी आपने नहीं देखा और ना ये आपको ज़ेब देता था कि आप पीछे मुड़ मुड़ कर देखें और द हेरोफेंट तक का सफ़र करते हैं। न किसी की मदद ली, न किसी की हेल्प मांगी है, बस ट्रस्ट किया है अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका पर और लोग हैरान हैं कि क्या ज़बरदस्त कमबैक दिया है। और आज लोगों को आप लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप देखे जा रहे हो। ना गुरूर है ना तकब्बुर है, बहुत ख़ास होने के बावजूद भी ख़ुद को आम रखा हुआ है। यहाँ लोगों ने ये मोजज़े होते हुए भी देखा है और लोग इंस्पायर हो रहे हैं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से और वो चाहते हैं कि वो भी खुद को आपकी तरह ट्रांसफॉर्म करें। यहाँ आप सिखा रहे हो कि खुद से करना होता कैसे है। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत पसंद किया जा रहा है। यहाँ ये ओरेकल कार्ड कहता है कि आपको डिवाइन बहुत से पीसेस में तोड़ तोड़ कर, मार मार कर, जला जला कर कुंदन बना चुके हैं और आप
آپ کو تیار کرنے کے بعد جہاں آپ کھڑے ہو جاؤ گے لائن وہی سے شروع ہوگی، یہاں سے آپ کی لائف کا وہ ایرا سٹارٹ ہوتا ہے جہاں آپ ناکامی کو نہیں دیکھو گے۔ آپ اس کے بعد کبھی بھی ناکامی کا چہرہ نہیں دیکھو گے۔ آپ کے نیم فیم میں زبردست اضافہ ہوگا جو آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہونے والا ہے۔ ورلڈ کے ساتھ آپ کو زبردست قسم کی پروٹیکشن دی گئی ہے اور آپ کو ایک لمٹ لیس انسان بنانے پہ کام چل رہا ہے۔ جہاں آپ کو لگے کہ کہانی ختم ہے دوستو، دراصل وہاں سے اس کی شروعات کروائی جاتی ہے۔ آپ کو ایک ایگزامپل بنایا جا رہا ہے کہ وہ منافقین بھی عبرت حاصل کرے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے کہ اللہ پہ توکل کرنا کیسے ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ کم آپ بھی نہیں ہو اور کسی سے بھی کسی بھی طرح کم نہیں ہو، بہت کچھ جانتے ہو، بہت ساری معلومات آپ کے پاس موجود ہے اور بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ریویل کرتے جا رہے ہو۔ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس سے لوگ بہت متاثر ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے آپ نے خود کو ڈیٹیچ کیا ہوا ہے اور آج بھی آپ خود سے کرنے پر یقین رکھتے ہو اور آج بھی آپ کو کسی کی مدد نہیں چاہیے ہے۔ آپ کی انٹیوشن پاور بہت غضب کی کر دی گئی ہے۔ یہاں جو لوگ آپ کے معیار پہ پورے اترے ہیں ان کی بھی اپنے لائف سیٹ کر دی ہے۔ یہ لوگ بھی آپ کو مغرور یا متکبر نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ کے ورکرز بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سب کو راستہ بتانے والے انسان ہو۔ دوستو، یاد کیجئے گا اس ٹائم کو جہاں راستوں کے نقوش تک مٹ گئے تھے آپ کی لائف سے۔ اس ٹائم پر آپ کے ساتھ کون تھا؟ اور آج آپ راستہ دکھانے کا کام کر رہے ہو۔ یہ ہوتی ہے ڈیوائن بلیسنگ۔ دوستو، آپ کو کسی بھی ریڈنگ کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ان کارڈ سے زیادہ طاقتور آپ کو ڈیوائن بنا چکے ہیں۔ اپنے ٹرسٹ کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ دوستو، یہاں اس تیسرے اوریکل کارڈ کا میسج یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹیچ کریں کہ اپنا راستہ وہ کیسے تلاش کریں، خود تلاش کریں اور کیسے کریں، اپنی حقیقت کو وہ خود سمجھے، کیسے سمجھے۔ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، شروعات میں کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں، مگر ٹائم ٹو ٹائم جو ہے آپ کو اس میں مختلف راستے ملتے جاتے ہیں اور ہر مشکل جو ہے ایک دن سالو ہو ہی جاتی ہے۔ لوگ ڈاؤٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اس پہ چلے نہیں ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ان کو سمجھانا آپ کا کام بنتا ہے اور آپ کا کام سنوارنا ڈیوائن کا کام ہے۔ آپ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں۔ جو شمع آپ نے اپنے لیے جلائی تھی، اس کی روشنی سے دوسروں کو بھی مستفید ہونے دیں۔ آپ سیلف میڈ کیسے بنے ہو یہ بتائیں، جبکہ آپ کو بنانے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ تھا۔ جہاں آپ پہنچ چکے ہو، یہاں آپ کو شکست دینا ہرانا ناممکن ہے۔ آپ کا کمپٹیشن ہمیشہ خود سے ہی رہا ہے اور یہ بہترین کمپٹیشن تھا آپ کا۔ دوستو، یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ٹرانسفارمیشن آسان ہرگز نہیں تھا۔ آپ کو لوگوں نے ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ ڈیوائن کی مرضی تھی۔ آپ کا امتحان بہت مشکل رہا ہے مگر آپ ناکام نہیں رہے ہو۔ کوئین آف وینڈ کہتا ہے کہ آپ کو بنانے میں ڈیوائن نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ سیون آف سورڈز پاسٹ کے منافقہ کی بات کرتا ہے، اس کو کسی بھی صورت آپ نے اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا ہے۔ یہاں آپ کو سوشل میڈیا کی پاور دے کر ڈیوائن آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں دا ورلڈ کے ساتھ کہ بہت پروٹیکٹڈ انسان ہو۔ دوسرا میسج یہ ہے، اگر اس ناپاک منافقہ کی اب کسی بھی حرکت کو جو یہ آپ کے ساتھ کرے آپ نے برداشت نہیں کرنا ہے، اسے فوراً پبلک کر دینا ہے۔
अपने सोशल मीडिया की पावर को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है। ये कॉल करे, टेक्स्ट करे, मैसेज करे, जो भी करे, आपने किसी भी चीज़ पे पर्दा नहीं डालना, हर चीज़ को आपने पब्लिक कर देना है और इसका गंदा गलीज चेहरा सबको दिखा देना है। 7 ऑफ कप्स आपके मुस्तकबिल में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, जहां आपने समझदारी के साथ चॉइस लेनी है। आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए है ताकि हर एरा गैरा जो है आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस ना करे और हर किसी को अपने मुंह भी नहीं लगाना है। जजमेंट मकाफात अमल की बात करता है और ये बैक फायर हो चुका है। पास्ट में जिसने आपको चीट किया था वो अपने मकाफात अमल से गुजर रहा है। दोस्तों 777 जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। 7 ऑफ स्वर्ड, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ वन, 777 से आप इसे क्लेम कर सकते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक जो है 10 ऑफ वैंड्स जो है रिवर्स में आया हुआ है। ये वो बर्डन है जो आप कैरी कर रहे थे और ये ट्रांसफ़र हो चुका है एक्स की जानिब। 10 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, चैरियट, 1010 की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। बिल्कुल कंप्लीशन है दोस्तों हर चीज़ की। देखें पास्ट का सफरिंग 10 कंप्लीट, चीटिंग, बैक स्टैबिंग, बिट्रेल कंप्लीट। इसके बाद आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल। हर चीज़ में कंप्लीशन है दोस्तों आपकी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको किसी भी किस्म की रीडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ आपकी पूरी ब्लड लाइन जो है ब्लेस्ड कर दी जाएगी। ख़ासकर पैसे बिजनेस को लेकर जो है आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत अपनी लाइफ में मज़ीद नहीं रहने वाली है। आपकी विश फुलफिलमेंट है ये। चैरियट का कार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से आपकी मूवमेंट को बता रहा है कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, डेथ पाथ, 5 ऑफ स्वर्ड। तो आपकी मौजें ही लगी हुई हैं दोस्तों, आपकी मौजें लगी हुई हैं। यहाँ मैं स्टार साइन बता दूं, कैंसर है, एक्वेरियस है, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो है, एक्वेरियस है, कैंसर है, वर्गो है, जेमिनाई है, सेजिटेरियस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है। दोस्तों लास्ट में ये मैं बताना भूल गया, ये जो फेमिनिन एनर्जी है, जो फीमेल है, देखें आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हो, आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको डिवाइन ने वो काबिलियत दे दी है कि आप जो भी करेंगे उसमें डिवाइन जो है अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देंगे आपके लिए। आप शक्ल सूरत से खूबसूरत हो जाएंगे, आपकी ब्यूटी में इजाफा हो जाएगा, फिजिकली आप मज़ीद फिट हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे। और यहाँ ये कार्ड आपकी ग्रोथ की बात करता है, आपकी सक्सेस, आपकी विक्ट्री की बात करता है। और यहाँ से वापसी का रास्ता कोई भी नहीं है दोस्तों, और किसी के लिए भी नहीं।